आशीर्वाद लेते हुए राजगद्दी संभालने से पूर्व और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण आशीर्वाद प्रदान करते हुए और अब धीरे 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 मंच की तरफ राजगद्दी संभालने के लिए युवराज आज के सभी के दिलों की धड़कन और बहुत सारा आशीर्वाद मिलता हुआ रविंदर मंडल काफी भावभीनी स्वागत। आज एक आम आदमी राजगद्दी संभालने जा रहा है। भरपूर सहयोग जनता का और एक I'll now request Ravinder Mandal to come up here and pay respects. इसके अलावा भी पता नहीं कहाँ से मुझे फोन आते रहते हैं कि आप नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते, आप दारू पीते नहीं पीते, आपके पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि फोन क्यों आया। तो सर ऐसे बहुत फोन आया सर, बहुत फोन आया। हाँ आप जानते हो मार्केट वैल्यू बढ़ी रहनी चाहिए। उतर गई भाई इसकी कुट्ठा आ गई। अरे तुम्हारा वैलेंटाइन कौन है? Push Verma, Anil Gupta, Shailesh Krishnan and all fellow colleagues. Well, I must say that this Junior Most Officer's speech was most liberating. And as Amrit said, it was a very sensible speech. It would be very difficult to
expect something more sensible than that. And the main point he made was that ever since he came to the IAS, somehow people are trying to find out whether he is non-veg or veg or what are his other habits. That means basically in the marriage market the value is quite high. But I think he just made a very sensible point and I must compliment him for that. And despite all the kind of things he had to face out here, he still went ahead and made an excellent speech. I can notice the young batch feeling very excited about it. I must compliment the entire batch. I think they have contributed in no small measure to this achievement. Well, I was just talking to my friend Javed and we were thinking about the first time we came to this particular function. That was way back in 1979. And I remember Javed and I and Govindan Nair, one of our colleagues, we were standing out there and there was a fireplace, not in this room, the other room out there. And we were totally, in awe of all our seniors. This senior, वो फलाना जो है ना वो secretary, फलाना ये है, फलाना वो है. We were totally overawed by all kinds of these people. And then we were brought there and introduced and we went ahead introducing ourselves, catching hold of our lapel and saying, Sir, I am Alok Ranjan sir, such and such batch. Sir, I am Javed Usmani sir, such and such batch. But the one good thing about there was that at that time, the drinks were not in the house like they are today, thanks to whom should I thank? I don't know who it. He's claiming the credit, so I thank him. I don't know whether he is claiming rightly or wrongly. Adoria? He says Adoria. Thank you, Adoria. भगवान करे आप हमेशा आबकारी आयुक्त प्रमुख से आबकारी बने रहे और इसी प्रकार हम लोगों का मनोरंजन करते रहे और वो भी निःशुल्क. So in that light, well, I do remember that the seniors were very kind to us and they went around purchasing drinks for us. There used to be some very strange system of buying coupons. वो coupon खरीदिए, वो coupon खरीद के drink लीजिए. And then I found seniors one after another coming up. Oh, come on, I love for you to drink. Well, we almost reached the stage where our young speaker of this batch came to almost the kind of the amount of drinks that we were served by our seniors. But yes, we do remember the seniors very, very fondly. Well, I don't know what more I should say on this occasion except that yes, I think like all of you, I too am a very proud member of the service. I think it's a absolutely great feeling, an absolutely great feeling to be a member of the AD Language Service, and in that particular of the Uttar Pradesh cadre, there have been people who have given age who have contributed significantly in every sphere of life, and throughout our career also, we have noticed and felt that there is a lot that we have done, there is a lot we have been able to do. There has been immense sense of satisfaction in many of the postings that we held. We felt that we have contributed significantly in all walks of life, and even sometimes when we felt that we have not done anything much, but we got a credit for having done quite a bit. But sometimes there have been downstream things also. It's not all been, hanky-dory and going up. There have been downswings also. So one has to face everything in one's career, the upswing as well as the downswing. And the important thing is to bear that all with a smile. Are you listening to me? The youngest batch out there. Please do smile. तुम क्या सुन रहे हो यार, तुमको तो पहले सुना चुके हैं. ये जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, ये बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन सुनने के बाद भी कोई बात को समझते नहीं है ना मानते हैं. That is the whole problem, with this service. It is so full of people with talent, it's so full of people with brilliance, it's so full of people with immense acumen that sometimes they think that हमको सब कुछ आता है. And that is something we should be a little scared of. Because we do tend to have this tendency, which sometimes the perception about us in the marketplace is that this is a service where its members are full of arrogance. That's what people say. I don't know whether you heard it or you not heard it. But this is what people say. Whether we like it or we don't like it, we want to accept it or not accept it, but people do say that. So there is something. Let us try and see how we can change this image of ours. How we can change this image from one being that of a service members are arrogant, whose members are self-serving, who are only interested in their own development or their own benefits and not for anything else.
You would like to be known as a service, I think, as a service which contributes to society, which contributes to the development of the society, which is pro-poor, which is pro-underprivileged, and this is carrying out its duties in utmost integrity and honesty. I think that's how we should like to be remembered. This is how, this particular occasion of the IES week is my message. That's how we should think about ourselves. It's a great service, I say again. It's a great service. It gives you great opportunity to contribute. It gives you great opportunity to deliver. It's a great opportunity to be something significant in society. It's a great opportunity to be having a status, having a sense of self-satisfaction, having a sense of self-optimization, and ultimately a sense of self-realization. It's a great service, yes. But let us do that. Let us contribute in every way we can. In whatever way, in whatever job we are holding, let everybody feel that this is a service which is the cut above the rest. It's the cut above everybody all. It's a service which is different from everybody. It's a service which is far above everybody else. And that is the halo we must carry with us. That is the halo we must carry with us. Let us not do anything which puncture this halo. Let us not do anything which puncture this halo. Is what I want to say to you, gentlemen, ladies and gentlemen. All of you are brilliant. All of you have done wonderfully in your academic career and your service career. And all of you and most of you have a long service ahead of you. Javed and I don't have too much ahead of us, nor do any of you sitting on the high table have too much ahead of us. But I think we can look back and say, yes, there are moments of great satisfaction, moments of great, immense feeling of having done something for the people, and that provided us the satisfaction of being members of the service. Well, ladies and gentlemen, here I want to wish you all the very best for the coming, for your future, for your career in the civil service, and I'm absolutely sure, with the kind of ability that you have, you will certainly make a difference. That's the question of the life. That's what's important. Please make a difference. Thank you very much. One more round, please. Thank you very much, sir, for a very, very powerful, power-packed, illuminating and motivating talk to all of us. I once again thank that person who mixed carbon, hydrogen and oxygen into a great equalizer where bonds are broken. This chemical analysis known as ethyl alcohol has truly enlightened this spirit, and we would really, really thank Atoria sir and everybody for bringing about, for breaking the ice, for bringing us closer. Yeah. And thanks to carbon, hydrogen and oxygen also for making this. Man of the day is Atoria sir. Sir, in absentia or probably? As per the tradition, I now request Shri Javed Usmani ji, the President of the IAS Association, to come and deliver his speech to us and motivate us along. Thank you. सबसे पहले मैं अटोरिया साहब से अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर हम सबका ओवेशन स्वीकार करें। मैन ऑफ द मोमेंट, आई वुड से मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द चले गए। मैं सबसे पहले यूपी आईएएस एसोसिएशन की ओर से आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सबका स्वागत करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में, सर्विस डिनर में आपने पार्टिसिपेट किया और इसको सफल बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सर्विस डिनर और ये सर्विस वीक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत रूप से। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा आखिरी सर्विस वीक है, आप सब जानते हैं।
36 साल की लंबी सर्विस के बाद मैं 16 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहा हूं। शायद अगले सर्विस वीक में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझको क्रिकेट मैच में या सर्विस डिनर में आने का इनविटेशन भिजवा दीजिए। इस सर्विस ने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने मुझको बहुत कुछ दिया है। अनेकों बार मुझसे पूछा गया पिछले 36 वर्ष में कि आपको कोई रिग्रेट है आईएएस ज्वाइन करने का, और मैंने अपने दिल को टटोला और मैंने ये पाया कि वास्तव में मुझको कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने आईएएस ज्वाइन किया, कभी भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ। इस सेवा ने मुझको बहुत कुछ दिया, इमेंस वैरायटी दी। हर 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, आजकल 6 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन हर 1-2 वर्ष बाद आपका जॉब सब्सटैंटिवली चेंज हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल वैरायटी है कोई ऐसा और करियर जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वैरायटी आपको उपलब्ध कराए अपने जीवन काल में। यदि आप हिंदुस्तान लीवर में मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं या एक्सेंचर में या कहीं और आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, पूरे जीवन आप वही रहेंगे। एक यही सेवा है जो आपको हर 3 वर्ष बाद सब्सटैंशियली आपके जॉब को चेंज कर देते हैं। आप फील्ड में हैं, ये उधर शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। अगर आप फील्ड में हैं तो आपका कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कभी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एमडी हैं, कभी कोई और आप काम कर रहे हैं, आप सचिवालय में हैं, तो कभी आप होम डिपार्टमेंट में हैं, उसके बाद आप शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे। हर नौकरी, हर पोस्टिंग एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। अगर आप उस काम को ठीक तरह से करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सारा कानून अलग है, सारे नियम अलग हैं। आपको उस काम को अगर ठीक तरह से करना है तो आपको नई चीज सीखनी पड़ेगी। ये वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस सर्विस में बहुत यंग एज में बहुत इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉब ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बहुत चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जो कि और करियर्स में नहीं आते। वरिष्ठ स्तर पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिलता है, और वो पॉलिसी प्रदेश या देश को इफेक्ट करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस सर्विस में मुझको बहुत कुछ मिला है। मुझे विश्वास है आप में से प्रत्येक को इस सर्विस द्वारा बहुत कुछ मिला। आज मेरे लिए ये मौका है कि मैं आपको मेमोरी लेन में या यादों के बीच में लेकर के चलूं, क्योंकि मेरे पिछले 36 वर्ष की मुझे कुछ यादें हैं, ताज़ा हैं, जो कि मैं आपके सामने आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे याद आती है 10 जुलाई 1978 की, जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में बैठ करके हम देहरादून जा रहे थे। एक उत्साह था, बहुत सारे और साथी थे जो कि सिलेक्ट हुए थे आईएएस में, मसूरी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए हम लोग जा रहे थे। मसूरी एकेडमी में अनेकों फ्रेंडशिप्स, अनेकों दोस्तियां हुई जो कि पूरी जिंदगी चली। अब भी मुझे याद है प्रोफेशनल कोर्स फेज 1 में जब हम कटेसर कासिल में रहते, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग कटेसर कासिल में रहे हैं,
लेकिन वो एक अनुभव तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या खूबसूरत जगह थी, बाहर बैठ करके सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, ऐसा लगता था वी आर किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सामने हिमालय की पर्वतमाला और खुले आसमान के नीचे बैठ करके 10-12 प्रोबेशनर्स जो हैं वो ऑमलेट खा रहे हैं। लेकिन वो फीलिंग थी कि ऐसे आप विश्व के सम्राट हैं। लग रहा था कि क्या सामने आपके पूरा खुला हुआ माहौल। हमें अब भी याद है जब हम फाउंडेशन कोर्स में थे तब मसूरी ड्राई था। आप में से बहुत से लोगों को वो अनुभव नहीं हुआ। एक बस पकड़ के, एक बस थी जिसमें बैठ करके हम लोग छुटमलपुर जाते। आप में से बहुत से लोगों को छुटमलपुर का मतलब नहीं पता। छुटमलपुर वो जगह थी जहां पहाड़ खत्म होता था, मैदान शुरू होता था। पहाड़ ड्राई था, मैदान वेट था। छुटमलपुर से बस में बैठ के जब हम लोग लौटते थे तो बड़े खुश थे। हमें अब भी याद है प्रोबेशन के पीरियड में आर्मी अटैचमेंट। मैं एक जगह है सिक्किम में रिनो, वहां गया था और वहां पे पहली बार हमें पता चला कि आर्मी में भी ब्यूरोक्रेसी होती है। क्योंकि हममें से कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमको आपका एक सरकारी कार्यक्रम आया है, आप यहाँ से लेके वहां ले जा रहे हैं हमको, बट हमको घूमने के लिए कालिम्पोंग जाना है, तो हमको एक आर्मी की ट्रक दे दीजिए, उसमें 10-12 हम लोग जाके कालिम्पोंग घूमते हैं। तो एक मेजर मित्रा थे, उन्होंने हमें समझाया। उन्होंने कहा देखिए आपका एक सरकारी कार्यक्रम आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलकर बनाया है, बड़ा महत्वपूर्ण, 2 मिनिस्ट्री से मिलकर बनाया है। उसमें हम आपको 15 जगह ले जा रहे हैं और आर्मी के ही ट्रक्स में बैठा के ले जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी कार्यक्रम जो आया है उसके तहत कोई ट्रक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है और कहीं पर चलते चलते खड्डे में गिर गई, आप मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गैर सरकारी कार्यक्रम में कालिम्पोंग जाने में हम आपको ट्रक दे दें और वो खड्डे में गिर जाए और तब आप मर जाए तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए हम आपको ट्रक नहीं देंगे। समझ में आप हमें आ गए ब्यूरोक्रेसी हर जगह, आर्मी में भी ब्यूरोक्रेसी। प्रोबेशन पीरियड के दौरान ट्रैक पे जाना, भारत दर्शन पे जाना। भारत दर्शन में मुझे याद है हम लोग गए थे, आलोक भी मेरे साथ थे, मैं था, आलोक थे, अनूप मिश्रा थे और पंकज अग्रवाल, लेट पंकज अग्रवाल। हम लोग गए थे, एक जगह थी उसका नाम था सुल्तान बटेरी, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला। उसका नाम सुल्तान बटेरी इसलिए था, किसी जमाने में टीपू सुल्तान वहां आया था, उसने वहां बैटरी और गन्स लगाई थी, तो सुल्तान बटेरी उसका नाम पड़ गया। हम वायनाड डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के यहाँ गए, 4 प्रोबेशनर्स थे, हम लोग आ गए हैं। आप बड़ा अच्छा कलेक्टर था। उसने कहा देखिए हमको जो मसूरी एकेडमी से आपके डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं रामकिशन जी, उनके निर्देश आए हैं कि इन सबको ठहराओ उसी जगह पे जहां पर इनको सर्वे करना है। ट्राइबल अटैचमेंट के लिए आए थे हम लोग वहां से, तो ट्राइबल एरिया में ठहराओ इनको, किसी प्राइमरी स्कूल में या किसी आयुर्वेद के औषधालय में। तो उसने कहा हम रिकॉर्ड पर आपको आयुर्वेद औषधालय में ही ठहरा है, लेकिन हमने आपके लिए इरिगेशन डाक बंगले में व्यवस्था कर दी। जब रामकिशन जी आएंगे, वो आएंगे जरूर, बड़े केटीपी हैं। जब वो आएंगे तो 3 दिन पहले हम आपको बता देंगे, आप आयुर्वेद औषधालय में चले जाइए। यू वुड बिलीव इट, 3 दिन पहले हमको उन्होंने बताया, हम लोगों ने शेव करना बंद कर दी और हम लोग आयुर्वेद औषधालय में ट्रांसफर हो गए। और फिर हम लोगों ने बड़ी खुशी से देखा रामकिशन जी चढ़ते हुए चले आए थे पहाड़ के ऊपर हमारे आयुर्वेद औषधालय के, और वो आए, उन्होंने देखा हम लोग अनशेविंग थे, बुरे हाल में थे, हमारा सब कपड़े वपड़े नहीं पड़े हुए थे। बड़ी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने दी।
मुझे याद है मेरी पहली पोस्टिंग हुई, मैं एक सब डिवीजन है उस जमाने का नैनीताल जिला था, उधम सिंह नगर जिले में है, उत्तराखंड में है, पहले यूपी में था। खटीमा नाम की एक जगह नैनीताल जिले का अंग था, नैनीताल का दूरस्थ सब डिवीजन था, 140 किलोमीटर दूर था नैनीताल से। मैं वहां पर पहली बार पोस्टिंग मेरी हुई एसडीएम खटीमा, और वहां पे मुझे बहुत तरह के अनुभव हुए। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एसडीएम के कोर्ट के लिए वहां था, वास्तव में बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि वहां पहले तहसील ही थी, बाद में एसडीएम का मुख्यालय शिफ्ट हुआ था। तो तहसील में एक कोने में एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, जो कि पटवारियों का जब मीटिंग होती थी तो रेस्ट रूम था वो पटवारियों का, वो आके वहां लेट के सोते थे। उस कमरे को एसडीएम का कोर्ट बना दिया गया। तो जब मैं वहां पहुंचा, पहला पोस्टिंग था एसडीएम कोर्ट, तो मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा ये सब। खैर मैंने कोर्ट वर्क वगैरह शुरू किया। पहली बार समझ में आया कि these are the difficult things that you have to face when you work in this service। मेरी एक बैचमेट थी सुनीता त्रिवेदी जी का नाम है, इंडियन पोस्टल सर्विस में थी, वो नैनीताल में ही पोस्टेड थी। उनका एक भव्य सा भवन था नैनीताल में, जो कि ओवरलुकिंग द लेक था। उसमें फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, सेकंड फ्लोर पे उनका घर था। वो इंस्पेक्शन के लिए अपने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के इंस्पेक्शन के लिए आई, तो एक बैचमेट की हैसियत से वो मुझे विजिट करने आई। एंड शी वाज शॉक्ड कि कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, आईएएस में हो, मैं तो पोस्टल सर्विस में हूँ। पहली बार समझ में आया कि आईएएस में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो। वहीं पर एक अनुभव मुझे याद आता है, एक पत्रकार थे, उनका नाम भी मुझे याद है, सैयद सलीम। उनका कोई काम था, वो नहीं मैंने किया था, उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायतें भेजनी शुरू कर, और वो शिकायतें लौट कर राष्ट्रपति सचिवालय से मेरे पास, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मैंने कहा भेजी, सब जगह से लौट करके वो हर तीसरे दिन एक शिकायत की कॉपी मेरे पास आती थी। और उस शिकायत की एक लाइन मुझे अभी याद है, कभी नहीं भूलूंगा। उस जमाने में मैं सिगरेट पीता था, बहुत पीता था सिगरेट। बाद में सन 2000 से मैंने सिगरेट छोड़ दिए, लेकिन तब मैं स्मोकर था, हेवी स्मोकर। उसकी एक लाइन मुझे अभी याद है, दिन में 3 पैकेट विल्स फिल्टर के पीते हैं, जाने पैसा कहां से आता है। That was the time I started getting a thick skin, and that is something which I think is essential in this service. Acquire a thick skin. तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग हुई, आप में से बहुत लोग की हो चुकी है, कुछ आजकल जिला मजिस्ट्रेट हैं और कुछ बाकी करेंगे। देयर इज नो डाउट कि बहुत यंग एज में बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज जिला मजिस्ट्रेट आपको दी जाती है। 1984 में पहली बार जिला मजिस्ट्रेट में बना था, 28 साल की मेरी उम्र, आजकल शायद उससे कम उम्र में बनते हैं, लेकिन इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ यंग एज, दैट इज व्हाट दिस सर्विस प्रोवाइड्स यू। मुझे याद है मैं बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ, और वो टेंस पीरियड मुझे याद है, और उसको मैनेज करने की समस्याएं मुझे याद है। उसके तुरंत उपरांत 2 इलेक्शन हुए, एक लोकसभा का और एक यूपी की विधानसभा का। एक बार आप इलेक्शन करा के देख लीजिए, आप में से बहुत लोगों ने कराया है और कुछ लोगों ने शायद ना कराया हो, लेकिन अगर इलेक्शन आपने कराया है तो वो अनुभव अपने में एक यूनिक अनुभव है। देश की डेमोक्रेसी के डांस में भाग लेना यूनिक एक्सपीरियंस है, जो कि एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको मिलता है।
मुझे याद है जब मुझे पोस्ट किया गया था एज एमडी ऑफ यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन, एक होती थी, अब आप में से बहुत लोग भूल चुके होंगे कि इस तरह की चीज भी होती थी, यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन, जो चुनाव डाला में किसी जमाने में ये तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को सीमेंट मिल बनाना चाहिए और एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन सेटअप की गई थी, यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन। आलोक भी वहां पोस्टेड थे। मैं वहां पर एज एमडी यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन जब पोस्ट हुआ था तो उस समय उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। वो कॉर्पोरेशन बिक चुकी थी, फिर वापस खींच ली गई थी, उसमें झगड़े हुए थे, उसमें लेबर वर्सेस मैनेजमेंट के झगड़े हुए थे, उसमें पुलिस फायरिंग हुई थी, उसमें 7 मजदूर मारे गए थे और उन सब बवालों के बीच में मुझको वहां पोस्ट कर दिया गया। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं वहां पर 2 साल तक रहा और 2 साल तक लगातार मुझे सिंपैथी मिलती थी। जब भी मैं लखनऊ आता था मुझे सिंपैथी मिलती, अरे अभी वही हो, अरे बड़ा अन्याय हो रहा है तो। लेकिन विश्वास रखिए, मैं समझता हूं कि यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन की मेरी पोस्टिंग मेरे पोस्टिंग के जीवन काल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग पोस्टिंग थी। बहुत ही बुरी हालत में वो थी जिस समय मैं आ गया था और 2 साल में मैंने काफी कुछ में उसको सुधार कर पाया। 0 प्रोडक्शन था उसका, 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी तक मैं उसको ले गया था, which means about 1.25 million tons of cement per year. It was a great achievement and I was so happy about it. But I continue to get sympathy. इस सर्विस ने मुझको मौके दिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पर काम करने के, अनेकों मौके दिए, लेकिन जो मुझे याद है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं सचिव के पद पे रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय में लगभग 8 वर्ष तक संयुक्त सचिव के पद पे रहा और उस अवधि में अनेकों मौके मुझे मिले पॉलिसी, देश के लिए जो नीति निर्धारण होता है उसमें अपना योगदान देने। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ये एकमात्र यूनिक सर्विस है जो आपको इम्प्लीमेंटेशन के कटिंग एज से लेकर के पॉलिसी फॉर्मुलेशन के हाईएस्ट एज तक पूरा मौका देती है कि आप हर जगह अपना रोल अदा कर सकें। इसी सर्विस में मेरा सौभाग्य है, मुझको मौका मिला विदेश में सर्व करने का। मेरी पोस्टिंग हुई नेपाल में इंडियन हाई कमीशन, जहां मैं इंडियन एड टू नेपाल को देख रहा था और अनेकों प्रोजेक्ट्स पिछले 50-60 साल से भारत सरकार नेपाल को मदद करती रही है। अनेकों प्रोजेक्ट्स नेपाल में इंडियन एड से स्थापित हुए हैं और अब भी मेरी दोस्ती नेपाल के अनेकों लोगों से है, क्योंकि मैं वहाँ 3 वर्ष तक मैंने काम किया था उसमें। कहने का अभिप्राय केवल ये है कि मैं ग्रेटफुल हूं, आई एम ग्रेटफुल दैट आई वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। I think it was a privilege and an honor to be a member of this service. इस सर्विस में 36 साल में मैं कभी बोर नहीं हुआ, लगातार नए नए अनुभव मिलते रहे। इस सर्विस ने मुझे बहुत आत्म सम्मान दिया, सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिया, आत्मसंतोष। इस सर्विस ने मुझे अनेकों मौके दिए जब मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों का भला कर सकता हूं। और ये मेरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक को अनेकों मौकों पर इस सर्विस ने ये अनुभव दिया होगा और भविष्य में देती रहेगी। मैं आज के इस मौके पर अपने जूनियर कलीग जो हमारे यंग ऑफिसर आज मौजूद हैं उनको 2 शब्द कहना चाहूंगा और थोड़ी बहुत शेर व शायरी भी करना चाहूंगा, क्योंकि
क्योंकि जब कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो किसी शेयर के माध्यम से देना जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। मैं पहला पॉइंट अपने जूनियर कलीग्स से कहना चाहूंगा कि गर्व करो कि तुम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर हो। फील प्राउड ऑफ इट, यू आर द मेंबर ऑफ अ सिलेक्ट सर्विस। इस पर गर्व करो, सर ऊंचा उठा करके आप काम करो। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं अपने जूनियर कॉलीग से ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन कॉम्प्रोमाइज का खेल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि आप लाइनें खींच दें और हम कभी उन लाइनों को क्रॉस नहीं जाएंगे। ये डेफिनेटली 36 साल से मैं भी प्रशासन में हूं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। कहीं ना कहीं अंत तो गत्वा एक कोर आपको बनाना पड़ेगा, उस कोर की लाइन खींचनी ही पड़ेगी। तो अपने मूल सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज मत करो। और इस पर मैं इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लिसिटली स्टेट करने के लिए एक शेयर सुनाना चाहता हूं। वसूलों पर जो आंच आए, वसूल सिद्धांत, वसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कभी अपने मूल सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप इस तरह की कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो आपके मूल सिद्धांतों से है, आपकी बेसिक इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज है, तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान है। और इसका भी एक शेयर से ही स्पष्ट होता है, और वो शेयर मैं अर्ज करना चाहूंगा। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अगला मैं इस पॉइंट आपको अपने यंग पुलिस कहना चाहूंगा कि कभी भी प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि आप लाइनें खींच दें, स्टबर्न हो जाएं, आप कहें कि बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हिकमत अमली एक पुराना शब्द है, हिकमत अमली। प्रशासन का मतलब चलती का नाम गाड़ी, आपको चलाना है काम, हिकमत अमली से काम निकालना है, डिप्लोमेसी से काम निकालना है। और इसको भी एक शेर ने बहुत अच्छा अर्ज किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और मुझे अच्छा लगा तो मैं लिख के लाया हूं। कौन सी बात, सुनिए ध्यान से, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो फिर हर बात सुनी जाती है। आपको अगर ये पता हो तो कौन सी बात को कहां पर कैसे कहना है, ये अगर आपने सीख लिया तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो थोड़ी डिप्लोमेसी भी सीखिए। डू नॉट बी टू स्टबर्न, डू नॉट बी टू स्टबर्न, यू हैव टू वर्क एज अ प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक और पॉइंट में आप तो अपने यंग कलीग्स को कहना चाहूंगा कि ये आप यंग हो, अभी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो जरा सी चैलेंजिंग पोस्टिंग लीजिए। डू नॉट सीक सेफ पोस्टिंग्स। थोड़ा सा चैलेंज जो है उस थोड़ी रिस्क लीजिए, थोड़ी चैलेंजिंग पोस्टिंग लीजिए। अभी आपको चैलेंज लेने का, रिस्क लेने का आपके सामने वक्त, और वो चीज भी एक शेर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि शेर ये कहता है कि भंवर से लड़ो, भंवर से लड़ो
कुंद लहरों से उलझो, कुंद मतलब ऊंची ऊंची, हवा से लड़ो, कुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। कूद पड़ो, स्ट्रगल करो, टेक अप अ डिफिकल्ट जॉब, फेस इट, किनारे किनारे मत चलो। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आप सबसे, अपने यंग कलीग से, आप सबसे, इस सर्विस में आपको मौका मिला है अपने को उस स्थान तक ले जाने का जहां पर आप जहां कहीं हो अच्छाई फैलाएं, अधिक से अधिक संख्या में लोगों का भला कर सकें। ये सर्विस आपको ये मौका देती है। वंस अगेन, इसको भी एक शेर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप एक चिराग हो, जहां पोस्टिंग हुई है वहां रोशनी लुटाओ। डोंट सर्च फॉर अ हाउस फॉर योरसेल्फ। जहां आपको सदाकांत आपको वैसा कर देंगे वो अलग बात है। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन काल का एक लंबा चैप्टर 2-3 दिन में बंद हो रहा है और एक नया चैप्टर खुल रहा है। पिछले 36 वर्ष में आप में से अनेकों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। मैं आप सबका आभारी हूँ। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव मैंने आपके साथ महसूस किए हैं। आपके साथ व्यतीत की गई सर्विस की यादें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। इस मौके पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस यू। Thank you very, very much, sir. It was very, very inspiring speech, sir, and for us to be taken on memory lane, sir. मैं भारत सरकार से अपने सीनियर ऑफिसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा for having taken this train to come to be with us. तीन बातें हैं। One is that we will have Chief Secretary Sir आ जाए, be close to the president. Thereafter, जो लोग डांस करना चाहते हैं, we can have a small performance. Thereafter, everybody is required to be in the CSI for the function and सब लोग वहाँ चलेंगे and it will be a great show और सबकी attendance वहाँ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सर का वेट कर, सर का वेट अभी आ रहे हैं। आपके अनाउंस कर अरे एक दिलवा तो करेंगे नहीं सर्विस Close to the president. Thank you. Governor also. Thank you very much. छोटे प्रेसिडेंट दो तीन होते हैं भाई, थोड़े तीन होते हैं। अब छोड़ दो। Oh, what toast to self? Close to myself in that case. I let's have something. I just
everybody head down. Ladies are waiting for us. And then let's all go to the cultural evening program. और अटेंडेंस जरूरी है, नोट किया जाएगा. चलो यार चलो. CSI is organized by the sponsors. The special program that is going to follow from here at CSI is organized by the sponsors. But all of those out here who are still single and aspiring to gain a spouse definitely welcome and are required to be there at CSI. USSA, what we tell you.